Hello, dear students. Welcome back in your computer class. Today, I am going to discuss protocol and network security related to chapter 1. Let's get started from protocol. Protocol means set of rules. Just the way we follow certain rules while communicating or traveling on the road. जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है. Similarly, protocol is a set of rules used by the computers on a network to communicate with each other. इसी तरह प्रोटोकॉल नियमों का एक संग्रह है जिसे सारे कंप्यूटरों के द्वारा पालन किया जाता है ताकि वो नेटवर्क में बने रहें और एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकें. There are many type of protocols. In general, we use HTTP and TCP/IP protocols. First one is HTTP. It stands for Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol used between a web server and a web browser for transmitting HTML pages. HTTP प्रोटोकॉल वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र के बीच में मध्यस्थ का काम करता है ताकि वो HTML पेजेस को ट्रांसफ़र कर सके फ्रॉम वेब सर्वर टू वेब ब्राउज़र और वाइस वर्सा. Next one is TCP and IP protocol. TCP means Transmission Control Protocol and IP stands for Internet Protocol. TCP is a protocol that is used along with the IP to send data over the internet. TCP जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी डेटा पैकेट्स को इंटरनेट पे भेजने के लिए. The information is transmitted across the internet in the form of bundle called TCP, and it is responsible for dividing the data into packets before they are sent and for reassembling the packets when they arrive at the destination. TCP का मेन काम होता है डेटा को बंडल्स के फॉर्म में ट्रैवल करवाने का और रिसीवर एंड पे जब डेटा रिसीव होता है तो उसे रीड करने का. IP is a set of specifications that determines the best route for the packets across the internet so that the packets reach their destination address. और IP एड्रेस स्पेशली वर्क करता है उस पाथवे को सेलेक्ट करने के लिए जिसके थ्रू डेटा पैकेट्स जो हैं वो आसानी से डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंच जाएं. Mean to say, TCP and IP both combine together to transfer packets of data from sender to destination place by safely method. Next one is packet switching in network. How to packet switch in the network. डेटा को किस तरह से पैकेट्स के फॉर्म में नेटवर्क पे ट्रांसफ़र किया जाता है इस चीज़ को हम लोग अभी जानेंगे. लेट अस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पैकेट स्विचिंग इन अ LAN. सपोज डेटा हैज़ टू बी सेंड फ्रॉम कंप्यूटर ए. अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर ए से पैकेट ऑफ डेटा को सेंड करना टू कंप्यूटर बी और कंप्यूटर बी को भेजना, द डेटा एट computer A is split into the small chunks called packets. और जब आप A से किसी डेटा को B को भेजते हैं तो A कंप्यूटर अपने डेटा को कुछ छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर लेता है. A header is added to every packets और हर एक पैकेट्स के साथ एक हेडर ऐड किया जाता है. उस हेडर में सेंडर का एड्रेस होता है IP एड्रेस जिसे हम लोग मैक एड्रेस भी बोलते हैं. साथ ही साथ रिसीवर का मैक एड्रेस होता है, कहाँ पहुंचाना है इस चीज़ की उसमें जानकारी दी गई होती है. कंप्यूटर A एंड एड्रेस ऑफ कंप्यूटर B इज पुटेड इनसाइड द
header file and the computer A send the packet to the switch. और इसके बाद क्या करता है, कंप्यूटर ए पैकेट्स को स्विच को ट्रांसफ़र करता है. द स्विच हैज़ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, और स्विच के पास अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है दैट रिसीव packets coming from computer A and read the header of each packets, determine the port at which the receiver is connected and forward the packets on the corresponding cable. और स्विच क्या काम करता है, वो आने वाले पैकेट्स को रीड करता है और कहाँ उस पैकेट्स को भेजना है इस चीज़ को भी वो चेक करता है. देन आफ्टर वो उसे उस केबल्स पे भेजता है जहाँ से वो पैकेट डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुँच जाए. According to figure you can see here, computer A wants to send some files to computer B, and this process will happen by using switch or hub. Such a type of communication in which small units of data are rounded through the network based on destination address containing within each packets is called packet switching. और इस तरह का जो प्रोसेस है कि कोई एक पैकेट्स ऑफ डेटा है उसको आप क्या कर रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेज रहे हैं, तो पैकेट्स ऑफ डेटा के साथ एक हेडर फाइल होता है जिसके अंदर सेंडर का एड्रेस होते हैं और रिसीवर के एड्रेस होते हैं. सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस दोनों हेडर के अंदर स्टोर होता है और पैकेट्स के साथ, हर एक पैकेट के साथ ये जाता है, जिससे स्विच को पता चल पाता है कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर कौन सा है, यानी रिसीवर कंप्यूटर कौन सा है, किसे पैकेट्स भेजना है. देन आफ्टर वो फॉरवर्ड कर देते हैं पैकेट्स को ऑन द नेटवर्क. When the packet have to send to a computer on a different computer, they passes through a number of routers. Every packet is numbered. Packets may follow different path to reach the destination. अब हर एक पैकेट्स जो हैं वो कंप्यूटर के द्वारा सेंड किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, और वो डिफरेंट नेटवर्क से होके मूव ऑन करता है. देन आफ्टर वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंच पाता है. For better understanding, you can see this figure. This figure may help you to understand better how the packet of data transfer or transmitted from one computer to another computer. In this figure, computer send the packet of data on the network, and network have many routers. There are many routers inside the network, and this packet of data transferred from router to router and finally goes to server. You can see here, this is the way of packet switching in the network. Next one is, here some important points related to packet contains. Packet contains source address, destination address and sequence number. Then after data. पैकेट के अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है. हेडर होता है जिसके अंदर सोर्स एड्रेस होते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं, सीक्वेंस नंबर होता है कि ये कितने नंबर पे ट्रांसमिट होगा नेटवर्क में, और साथ ही साथ इसके डेटा भी होते हैं, जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना है. तो इस तरह से आप पैकेट्स के बारे में समझ सकते हैं. नेक्स्ट वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी. According to name, network security means to provide security to the network. Mean to say, a computer on a network can be accessed by many users. कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज़ किया जा सकता है on the network. Security measures have to be taken to protect network from unauthorized access and to prevent data or information theft. और हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करके अपने डेटा को सुरक्षित करते हैं. नेटवर्क में जितने भी डेटा हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो या फिर किसी के द्वारा स्टील ना किया जाए, चोरी ना कर लिया जाए. इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क की सिक्योरिटी करते हैं.
ताकि लीक ऑफ डेटा को रोका जा सके। There are many viruses, threats to computers. Next one topic is threats to computer. There are many type of viruses which harm our computers and try to destroy or try to damage our important informations. फाइल कैन बी शेयर्ड बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। नेटवर्क में फाइल्स का शेयरिंग किया जाता है। दिस मेक अ कंप्यूटर vulnerable to attacks by viruses, worms, Trojan horse, and so on that can easily spread because of the underlying network. फाइल का जब एक दूसरे कंप्यूटरों से साझा किया जाता है तो फाइल के साथ ही कुछ वायरसेस, वर्म्स या ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में इन कर जाते हैं और ये अनवांटेड और मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को अफेक्टेड करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उसे वो डिस्ट्रॉय करते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज वायरस। Virus is a type of computer software and it stands for Vital Information Resource Under Siege. Virus stands for Vital Information Resource Under Siege. It is a type of program. It spread itself from one computer to another computer and interference with the normal operations of a computer. Viruses attack themselves to any type of files and spread when these infected files are copied to the other computers. वायरस जो है वो अपने आप से खुद से इंक्रीज करता है अपने आप को और साथ ही साथ कंप्यूटर के अंदर रखे हुए फाइल्स को डैमेज करता है। और जैसे ही आप किसी इन्फेक्टेड फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं तो वो वायरस भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इन कर जाता है। People unknowingly spread a computer virus by sharing infected files or sending emails with virus as attachment. बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं और वो फाइल शेयरिंग के दौरान या फिर ईमेल सेंडिंग के दौरान वायरस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज देते हैं। Next one is worm. It is also a type of computer program that use computer network to send copies of itself to another computer on a network. और worm जो है वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो काफ़ी हार्म करता है कंप्यूटर को और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये खुद से ही ट्रांसमिट कर जाता है। अ वायरस रिक्वायर्ड ह्यूमन एक्शन, जहाँ की वायरस के लिए ह्यूमन एक्शन की रिक्वायरमेंट है ताकि वो फाइल को या फिर मेल को सेंड करे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, लेकिन वर्म्स के लिए कोई ह्यूमन एक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ विदाउट द नॉलेज ऑफ द यूज़र। और ये जो वर्म है ये काफ़ी डेंजरस होता है, ये बिना किसी भी एक्शन के अपने आप को रिप्लिकेट करता है कंप्यूटर के अंदर और वो डैमेज करता है कंप्यूटर को। Worms can cause several harms to a computer network such as blocking the network and reducing the speed of the network. और ये worm जो है ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फाइल्स को डैमेज करता है, साथ ही साथ कनेक्टिविटी को भी ये ब्लॉकिंग करने का काम करता है ताकि हम दूसरे नेटवर्क में जुड़ नहीं पाए। नेक्स्ट वन इज ट्रोजन हॉर्स। अकॉर्डिंग टू नेम, ट्रोजन हॉर्स is a computer program that appears to be a useful software but actually causes damage once installed or execute onto your computer system is known as Trojan horse. Trojan horse एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रिडिक्ट होगा, जो प्रिटेंट होगा हेल्पफुल सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, लेकिन वो एक्चुअली आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाएगा। ट्रोजन हॉर्स getting installed, it allows unauthorized access to the computer। और जैसे ही ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है ये अनऑथराइज्ड एक्सेस देने लगता है अदर
यूजर्स को. Trojan horse are very dangerous as they allow your computer to be remotely controlled by someone else and can cause loss of personal and confidential information. ट्रोजन हॉर्स जो होता है ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर को एक्सेस प्रोवाइड करता है अदर पर्सन्स को, ताकि वो आपके कंप्यूटर के अंदर इन कर सके और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को लीक कर सके या फिर चुरा सके. Viruses, worms, and Trojan horse may harm the data or affect the performance and speed of the computer. ये जो आपके different types of threats हैं computers के, malwares हैं, ये क्या करते हैं, जैसे कि वायरस हुआ, worms हुआ, Trojan horse हुआ, ये सारे के सारे आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन करते हैं, परफॉर्मेंस स्पीड को कम कर देते हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर के अंदर रखे हुए फाइल्स को भी डैमेज करते हैं. टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज टाइप ऑफ मालवेयर्स, और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. बिफोर गोइंग टू डिस्कस एंटीवायरस, यू सी दिस figure. In this figure you can see here some Trojan horse viruses goes into your computer, and when you send any email from your infected computer to other computers via mail or via file, the Trojan horse goes to the other computers and also affect the other computers too. As you can see here, this is the infected computer and mail goes to other computer, और मेल के अंदर जो है आपका ट्रोजन हॉर्स वायरस भी चला गया, आपको पता नहीं चला, और दूसरे कंप्यूटर को भी वो क्या करेगा, हार्म पहुंचा देगा. नेक्स्ट वन इज डेटा थेफ्ट. अकॉर्डिंग टू नेम, डेटा थेफ्ट मीन्स डेटा को चुरा लेना. इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि डेटा को जो है चुरा लेता है दूसरा कंप्यूटर, जिसे ज़रूरत नहीं है उस डेटा को चुरा लेगा, स्टील कर लेगा. पीपुल ब्रेक इन टू द कंप्यूटर नेटवर्क. सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में इन कर जाते हैं एंड डिस्टर्ब देयर फंक्शनिंग और टू स्टील कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशंस. वो क्या करते हैं, दूसरे कंप्यूटर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, और साथ ही साथ उसके इन्फॉर्मेशंस को चुरा लेते हैं. हैकर्स आर द कंप्यूटर एक्सपर्ट्स. हैकर्स जो होते हैं वो एक व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं जो काफ़ी कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं. हु कैन ब्रेक इन टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क. वो कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में इन कर जाते हैं. There are two types of hackers, white hat hacker and black hat hacker. In general, three types of hackers: white hat hackers, black hat hackers and grey hat hackers. But here only two types: white hat hackers and black hat hackers. According to name, white hat hackers is a person who fix the security loopholes, and they often there to corporations, public organizations, educational institution to make their network more secure. वाइट अटैकर्स जो होते हैं वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके कंप्यूटर को सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को, कंप्यूटर जितने भी कंप्यूटर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, ताकि आपके इंफॉर्मेशंस लीकेज ना हो या फिर डेटा जो है वो स्टील ना हो. तो वाइट अटैकर एक बेस्ट पर्सन होता है जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. ब्लैक हैट हैकर्स और क्रैकर्स. ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं वो एक क्रिमिनल माइंडेड और क्रिमिनल इंटेंशनल पर्सन होते हैं जो किसी भी अकाउंट्स को या फिर कह सकते हैं किसी भी कंप्यूटर को हैक करके उसके सारे इंफॉर्मेशंस को चुरा लेते हैं. फॉर एग्जांपल, द क्रैकिंग बैंक अकाउंट्स in order to transfer money to their own accounts and stealing confidential information and attacking the computer network of an organizations for money. देखो, जो भी ब्लैक हैट हैकर्स हैं ना, ये सारे क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और उनसे वो जो है ना रैंसम की डिमांड करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक आपका डेटा हम ये नहीं करेंगे, रिलीज़ नहीं करेंगे. तो बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो इलीगल वर्क करते हैं. तो जो भी इलीगल वर्क करते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं.
तो नेक्स्ट वन पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं? तो कंप्यूटर सिक्योर कर सकते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, ताकि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकें। अब इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्पेशली कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। कंप्यूटर के अंदर अगर कोई हार्मफुल वायरस और मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं तो उसे डैमेज करने के लिए और कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एवरी कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट हैव एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन इट एंड इट शुड बी अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। कहा जा रहा है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ना वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिससे आप हर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए और उसे रेगुलरली अपडेट भी करना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम द वेरियस टाइप ऑफ malwares like viruses, worms and Trojan horse. Antivirus software can detect these type of malwares and prevent our computer from them. और कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, इन इस तरह के जो भी मालवेयर्स हैं लाइक वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, इन सारी चीज़ों को वो डिटेक्ट करता है और उसे हमारे कंप्यूटर से रिमूव करवाता है। इट कैन आल्सो डीएक्टिवेट द एंड क्लीन अप द कंप्यूटर ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और इस तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उसको वो डीएक्टिवेट करते हैं, रिमूव करते हैं और कंप्यूटर से बाहर निकाल देते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सच एज एवीजी, एवास्ट है, नॉर्टन है, कैस्परस्की है, क्विक हेल्थ है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ एंटीवायरस इन द मार्केट। You should install any one in your computer or laptop to prevent your computer from viruses. Next one is firewall. It is also a security features which protect our computer system from undesirable data or unauthorized access. According to name, it is a software used to prevent unauthorized access to a computer network. और ये जो फायरवॉल है ये क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, किसी भी अनऑथराइज्ड नेटवर्क और कंप्यूटर को इन नहीं करने देता है। एंड फायरवॉल कैन बी implemented as a software and a hardware and combination of both. मीन टू से जो आपका फायरवॉल है ये या तो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में आपके कंप्यूटर के अंदर रह सकता है या फिर हार्डवेयर के फॉर्म में लगे हुए हो सकते हैं या दोनों के कम्बिनेशन के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में हो सकते हैं। ये all data and messages entering or leaving a computer network passing through a firewall. जितने भी डेटा नेटवर्क में इन करते हैं और आउट करते हैं वो सारे के सारे फायरवॉल से होके ही गुजरते हैं। फायरवॉल उसे चेक करता है, एग्जामिन करता है इच मैसेजेस को एंड ब्लॉक दोज दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्राइटेरिया। और एंड ऐसे डेटा जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को, नियमों को फॉलो नहीं करता है उसे वो ब्लॉकेज कर देता है, यानी उसे वो नेटवर्क के अंदर नहीं आने देता है। तो अनऑथराइज जितने भी डेटा होंगे वो फायरवॉल के पास से ही रिटर्न बैक हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फिगर यू कैन सी हियर अनडिजरेबल डेटा bouncing back from the firewall, and firewall protect the computer network from these type of data. As you can see here, this is the computer network and this is the firewall which protect the computer network to from unauthorized access. And here your chapter has been completed. If anyone have any doubts, you can contact me during the online classes. Thanks for watching.